The Night the Ghost Got In by James Thurber. Part 1. I suggest you keep your textbook in your hand for reference as we read the story. In this part, James hears somebody walking near the dining table downstairs. He wakes up his brother Herman and calls him out of his room. When they looked down, they felt as if the steps were walking up the stairs towards them. Herman ran to his room and slammed the door shut, while James slammed the staircase door. The commotion woke their mother up, and she came out. She asked what was going on downstairs. James realized that she had heard the sounds too. When they did not answer, she thought it was probably a burglar. Mother decided to call the police. The phone was downstairs and she hurled her shoe at the neighbor's window to wake them up and ask them to call the police. The night the ghost got in. The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915, raised such a hullabaloo. Hullabaloo means a lot of loud noises made by people who are excited. A hullabaloo of misunderstandings that I am sorry I didn't just let it keep on walking and go to bed. It's Advent. Advent means the arrival of somebody notable or something. Its advent caused my mother to throw a shoe through a window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. A patrolman means police. I am sorry, therefore, as I have said, that I ever paid attention to the footsteps. They began about 1:15 in the morning. A rhythmic, quick cadenced walking around the dining room table. Cadenced means a rhythmic pattern. My mother was asleep in one room upstairs, my brother Herman in another. Grandfather was in the attic, in the old walnut bed, which, as you will remember, once fell on my father. The attic means the top floor, just underneath the roof. It is usually used to store stuff that you don't usually use. I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. जेम्स थर्बर कहता है कि नवंबर 1915 में, यानी कि एग्जैक्ट दिन और आगे चल के टाइम भी देगा, ऐसा एक बात हुई जहाँ बहुत सा हंगामा हो गया, सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि गलत फहमी की वजह से। और वो माफ़ी चाहता है कि उसने उसको जाने नहीं दिया। वो कहता है आई डिडंट जस्ट लेट इट कीप ऑन वॉकिंग, और वो एक रेफरेंस भी है क्योंकि उसे शुरू में एक चलने की आवाज़ आई थी, एंड गो टू बेड। उसकी आने की वजह से जो भी चीज़ है उसकी बात कर रहा है, इट्स एडवेंट। उसके आने की वजह से उसकी माँ ने बाजू वाले के घर पे या बाजू वाले की खिड़की पे अपना जूता दे मारा, और उसका जो ग्रैंडफादर है, दादा, उसने एक पुलिसमैन को गोली मार दी। इसलिए वो माफ़ी चाहता है।
और that he says, I am sorry therefore as I have said, that I ever paid attention to the footsteps. तो वापस से माफ़ी चाहता है वो कि उसने उस कदमों के आवाज़ पर ध्यान दिया। अभी वो टाइम भी बोलता है कि ये टाइम है 1:15 यानी कि 1:15 सुबह में उसे एक चलने की आवाज़ आई डाइनिंग रूम के टेबल के आसपास। उसकी माँ ऊपर सोई हुई थी, उसका भाई एक अलग रूम में सोया हुआ था और उसका दादा एटिक में या माले पे सोया हुआ था। इन द ओल्ड वॉलनट बेड, वॉलनट एक लकड़ी का नाम है, यानी झाड़ का नाम है, असल में पेड़ का नाम है। उसी के पेड़ के लकड़े को भी वॉलनट बोलते हैं। विच एज यू विल रिमेंबर वंस फेल ऑन माई फादर, यानी कि उसके बाप पे एक टाइम वो वॉलनट बेड गिर गया था। और वॉलनट हम खाते भी हैं, अखरोट, अगर तुमको मालूम होगा तो। आई हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द बाथटब, ये वो बाथटब के बाहर उसने बस आया ही था और अपने आप को सुखा रहा था। एंड बिजीली रबिंग माई सेल्फ विद अ टॉवल व्हेन आई हर्ड द स्टेप्स, और उसने वो कदमों की आहट सुनी। They were the steps of a man walking rapidly around the dining room table downstairs. The light from the bathroom shone down on the back steps, which dropped directly into the dining room. I could see the faint shine of plates on the plate rail. I couldn't see the table. The steps kept going round and round the table. At regular intervals, a board creaked when it was trod upon. Trod means somebody stepped on it. I supposed at first that it was my father or my brother Roy, who had gone to Indianapolis but were expected home at any time. I suspected next that it was a burglar. It did not enter my mind until later that it was a ghost. After the walking had gone on for perhaps 3 minutes, I tiptoed to Herman's room. Hist! I hissed in the dark. Shaking him. Up, he said, in the low, hopeless tone of a despondent beagle. He always half suspected that something would get him in the night. Despondent means to be gloomy and depressed. A beagle is a dog. This is how a beagle looks like. I told him who I was. There's something downstairs, I said. उसे ऐसा लग रहा था कि एक आदमी जल्दी से डाइनिंग टेबल के आसपास घूम रहा है। The light from the bathroom shone down, यानी कि बाथरूम की लाइट नीचे चमक रही थी, उसके वजह से उसको थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा था। तो वो डाइनिंग रूम के ऊपर बराबर गिर रही थी, which dropped directly into the dining room. और वो देख रहा था, I could see the faint shine of the plates, यानी कि हल्की सी प्लेट की जो शाइन रहती है, चमक रहती है, वो दिख रही थी उसको। प्लेट रेल यानी कि यहाँ पर प्लेट्स रखते हैं। I could see the table. I couldn't see the table. वो टेबल नहीं दिख सकता था। The steps kept going round and round the table. तो ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है टेबल के आजू बाजू घूम रहा है। A board creaked when it was trod upon. किसी ने, trod का मतलब इसे बताया मैंने, किसी चीज़ पे पाँव रखना। creak का मतलब आवाज़ करता था। तो क्योंकि पुराने ज़माने के घर नीचे लकड़े के प्लैंक्स रहते थे, तो ऐसा लगता था कोई उस पर पाँव दे रहा था, वो आवाज़ करते थे। The steps kept going round and round the table. I'm sorry. I supposed at first that it was my father or my brother Roy, यानी कि उसको लगा पहले कि उसका बाप या उसका भाई रॉय, जो इंडियानापोलिस पे जा चुके थे, वो लोग आज आने वाले थे,
तो शायद वो लोग आ चुके हैं। आई सस्पेक्टेड, और उसे ये भी शक था कि हो सकता है कि ये चोर हैं, बर्गलर। इट डिड नॉट एंटर माई माइंड एंटिल लेटर इट वॉज अ गोस्ट। बाद में उसको दिमाग में आया, जब कोई भी नहीं मिला, वो तो बात की बात है, कि उसको लगा कि ये भूत भी हो सकता है। 3 मिनट हो चुके थे लगभग, जब उसने क्या किया, टिप टो टू हर्मन्स रूम, यानी कि बहुत हल्की से पाँव दबाते हुए अपने भाई हर्मन के रूम में जा चला गया। हिस्ट, आई हिस्ट, हिस्ट यानी कि असल में वो सांप की साउंड, ओनोमाटोपिया जिसको बोलते हैं, सांप की आवाज़ जैसे निकालते ना, मतलब अपन हम लोग यहाँ पर पिस पिस करते ना, वैसे ही इन द डार्क। और उसका भाई उठ गया और ऐसी शक्ल बना के उठा जैसे कि वो डिप्रेस्ड है। और वो बीगल, जिस वो कुत्ते की शक्ल जो एकदम प्यारा सा डरा हुआ कुत्ता जैसा लगता है, और वो डरा हुआ ही रहता था क्योंकि उसको शक था कि कोई ना कोई आके उसको रात में पकड़ लेगा। उसने बताया कि मैं कौन हूँ, और वो ये भी बोला कि देयर इज समथिंग डाउनस्टेयर्स। He got up and followed me to the head of the back staircase. We listened together. There was no sound. The steps had ceased. Herman looked at me in some alarm. I had only the bath towel around my waist. He wanted to go back to bed, but I gripped his arm. There's something down there, I said. Instantly, the steps began again, circled the dining room table like a man running, and started up the stairs towards us, heavily, two at a time. The light still shone palely down the stairs. We saw nothing coming. We only heard the steps. Herman rushed to his room and slammed the door. I slammed shut the door at the stairs top and held my knee against it. After a long minute, I slowly opened it again. There was nothing there. There was no sound. None of us ever heard the ghost again. The slamming of the doors had aroused Mother. She peered out of her room. What on earth are you boys doing? She demanded. हर्मन उठा, उसके साथ में बैक स्टेयरकेस तक गया। साथ में उन्होंने सुने, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वापस से लोग बहुत काफ़ी देर तक सुने, आवाज़ जब नहीं आई, हर्मन ने उसको बोला, देखा उसकी तरफ एक तरीके से गुस्से में, इन सम अलार्म, कि बोले अलार्म का मतलब ऐसा हो गया कि उसको एक तरीके से गुस्से में देखा कि मुझे क्यों नींद से उठा लिया तूने, जबकि कुछ नहीं है यहाँ पर। और जेम्स खुद सिर्फ एक तुवाल में, बाथ टॉवल में खड़ा था, इसलिए गुस्से में वो वापस अपने बिस्तर की तरफ, अपने रूम की तरफ जाने लगा, और जेम्स ने उसे रोक लिया। ग्रिप्ट हिज आर्म, यानी कि हाथ पकड़ लिया जोर से। देयर समथिंग डाउनस्टेयर्स। जब उसने बोला कि भाई नीचे कुछ है, वैसे ही इंस्टेंटली वो आवाज़ चलने की फिर से आने लगी। अब ऐसा लग रहा था कोई आदमी भाग रहा है, और अचानक ऐसा लगा कि वो आदमी उनकी तरफ भाग रहा है, और सीढ़ी पे 2 सीढ़ी कर करके झम मार के उन लोग की तरफ भाग के आ रहा है। लाइट हल्की सी ऑलरेडी थी, तो थोड़ी बहुत वो सीढ़ी पे लाइट थी, लेकिन उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए कुछ दिख नहीं रहा था, खाली कदमों की आवाज़ सुनने आ रही थी। तो हर्मन डर के मारे अपने रूम में जाके दरवाज़ा उसने पटक के बंद कर दिया।
जेम्स ने जो सीढ़ी का दरवाज़ा था वो भी बंद कर दिया और ज़ोर से अपने घुटनों के बल से उसको पकड़ के रखा ताकि कोई खोल न सके उसे। 1 मिनट गुजरा लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं किया। कोई आया नहीं, इसलिए जेम्स ने फिर से हल्के से दरवाज़ा खोला और देखा क्या है, तो देखा कुछ भी नहीं, आवाज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में उसने कभी वो आवाज़ सुनी भी नहीं। दरवाज़ों की पटकने की आवाज़ सुनकर उनकी माँ जग गई, अराउज्ड यानी कि जग जाना, उठ जाना। और शी पियर्ड आउट ऑफ अ रूम, यानी कि उसने अपने रूम से सर बाहर निकाल के देखा। क्या चल रहा है उसने पूछा, डिमांडेड यानी कि जोर से पूछना। Herman ventured out of his room. Venture means बाहर निकलना, come out. Nothing, he said gruffly, but he was in color a light green. What was that, all that running around downstairs? Said mother. So she had heard the steps too. We just looked at her. Burglars, she shouted intuitively. Intuitively मतलब समझ लेना, to understand, to think कि ये हो सकता है. I tried to quiet her by starting lightly down the stairs. Come on, Herman, I said. I'll stay with mother, he said. She's all excited. I stepped back onto the landing. A landing means a space where usually you stop, or it is space for rest between two flights of stairs. Don't either of you go a step, said mother. We'll call the police. Since the phone was downstairs, I didn't see how we were going to call the police, nor did I want the police. But mother made one of her quick, incomparable decisions. She flung up a window of her bedroom, which faced the bedroom windows of the house of a neighbor, picked up a shoe, and whammed it through the pane of a glass, across the narrow space that separated the two houses. हर्मन वेंचर्ड आउट ऑफ हिज रूम, यानी कि हर्मन फिर से, हालांकि डरा हुआ था, लेकिन क्योंकि माँ की आवाज़ आई उसे, तो बाहर निकला। वेंचर एडवेंचर से भी आता है, यानी कि कोई नई जगह, कोई नई चीज़ करना। यहाँ पर वो डरा हुआ था, इसलिए जब बाहर निकला तो वेंचर वर्ड इस्तेमाल किया कि वो डर डर के बाहर आया। कोई भी नई चीज़ करने के लिए आदमी डरता है। तो उसने बोला कुछ नहीं, नथिंग। ग्रफली, ग्रफली मतलब आवाज़ को डिस्क्राइब किया गया है। ग्रफ यानी कि भारी आवाज़। बट ही वॉज इन फैक्ट द कलर लाइट ग्रीन, एंड लाइट ग्रीन कलर का हो चुका था, यानी कि उसकी देख के लग रहा था कि काफ़ी डरा हुआ है, लेकिन हो सकता है वो ग्रीन कलर नहीं हुआ हो, लेकिन जेम्स का बोलना है कि उसको देख के लग रहा था डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो माँ ने पूछा, ये नीचे आवाज़ भागने के किसकी आ रही थी? तो जेम्स को समझ में आ गया कि ये माँ ने भी नीचे भागने की आवाज़ सुनी है। तो मगर ये लोग ने जवाब नहीं दिया। अभी बोले जवाब देंगे तो क्या देंगे, कोई मालूम ही नहीं था इन लोग को। तो माँ ने समझ लिया, खुद से ही डिसाइड कर लिया कि ये चोर होगा। बर्गलर्स, शी शाउटेड इंट्यूटिवली। इंट्यूटिवली मतलब समझ लेना खुद से ही, अपने एक्सपीरियंस से कि क्या हो सकता है। हालांकि उसको चुप बिठाने की कोशिश किए, लेकिन वो मानी नहीं। तो जेम्स ने बोला चलो मैं नीचे जाके देखता हूँ। उसने हर्मन को आवाज़ दी, लेकिन हर्मन ने बोला कि नहीं, मैं ऊपर रहूँगा। उसने ये बहाना बना दिया कि माँ एकदम एक्साइटमेंट में है, डरी हुई है, मैं माँ के साथ में रहूँगा। हालांकि वो खुद डरा हुआ था। तो हर्मन ने जो शुरू किया था नीचे चलना, उसने भी डर के मारे वापस से कदम पीछे ले लिए।
तो माँ ने वैसे भी चिल्लाया कि कोई नीचे नहीं जाएगा, हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। तो पुलिस, तो जेम्स चाहता नहीं था कि पुलिस वहाँ आए, लेकिन माँ ने डिसीजन ले चुकी थी, और उसने जाके अपनी जो खिड़की है बेडरूम की वो खोली। सामने वाली बेडरूम की खिड़की, जो सामने वाली पड़ोसी की जो खिड़की थी, उस पर अपना जूता उठा के दे मारा। वहम का मतलब होता है जो आवाज़, कोई भी चीज़ टकराने से आवाज़ होती है उसको वहम करके बोलते हैं। यहाँ पर जूता सामने वाले की खिड़की के कांच से टकराया और उसे चकनाचूर कर दिया। Glass tinkled into the bedroom occupied by a retired engraver named Bodwell and his wife. Bodwell had been for some years in rather a bad way and was subject to mild attacks. Most everybody we knew or lived near had some kind of attacks. Glass tinkled into the bedroom occupied by a retired engraver. वहाँ पर एक एनग्रेवर रहता था, रिटायर्ड। एनग्रेवर का मतलब होता है जो नक्शकारी करता है, ज़्यादातर के पत्थर पे, हालांकि लकड़े पे भी होती है, जो चीनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के कुछ भी चीज़ बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं या फिर लिखते हैं, है ना, वैसे। और वो रिटायर भी था, उसने छोड़ चुका था अपना काम। उसका नाम बॉडवेल था, उसकी बीवी साथ में रहा करते थे। बॉडवेल की तबीयत शायद ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, बट इन ज़्यादा बैड वे। कुछ सालों से वो ठीक नहीं रहता था और उसको माइल्ड अटैक्स आते थे। तो किस चीज़ के अटैक्स आते थे पता नहीं, लेकिन जब जेम्स कहता है मोस्ट एवरीबडी वी न्यू और लिव नियर हैड सम काइंड ऑफ अटैक्स, यानी कि जेम्स कह रहा है एक तरीके से कि आजू बाजू में जितने भी लोग के पड़ोसी थे, सब लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था। ये भी बोलने की कोशिश करता है शायद कि क्योंकि ये दो बच्चे लोग, तीन भाई लोग थे, जेम्स, हर्मन और रॉय, ये तीन भाई लोग इतना हंगामा करते हो गए, या उन लोग की फैमिली ही इतनी पागल होगी तो आजू बाजू वाले वैसे ही परेशान होते होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का एंडिंग है।